Ehsan Qureshi, Sunil Paul. With the countdown, we are going to 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everyone put your hands together. So now we release the audio of this film officially. Many, many congratulations to the entire team and the star cast. I request once again with round of applause everyone. Zordar taaliyan ho jaye. Now I request मराठी फिल्में बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही है और क्वालिटी की फिल्में बन रही है। आपने बोले तो शायद बहुत सारी हिंदी फिल्में अब अगर प्रेरणा देती और अगर सब्जेक्ट्स लेते हैं तो रीजनल सिनेमा से आई थिंक क्योंकि रीजनल सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी पे अटेंशन टू ऑल दिस Yes, but you know the thing is, I'm at a stage where it's been 3.5 years and it's very, very interesting. I am listening to scripts now, but let's see, I don't know what's going on in my mind. But yes, I don't differentiate between, I don't see any difference between regional and Hindi. It's as prestigious, as good to do, but also depends on the kind of time you have and what you are doing. So, I think taking a break because of you start acting with Not I think Ahan launch is very much like this that there is a business side, but so he's very, very secure. I think, I came into a stage where Dad wasn't feeling too good also. So I think the best 3.5 years that I spent of my life was with him, giving him all that attention that he deserved. Let's see, there's a lot other that is happening in my life, but hopefully soon I should get back to it. But I'm making different kind of content. It's not cinema. There is a lot of other stuff that we're doing. Happy doing that. The day I do get back into cinema, it will be definitely begin with Hindi. I'm not averse to any kind of regional language a hell of a lot. If Sunil Shetty became Sunil Shetty, it was probably the films that he did from the south. Malayalam, Telugu, Tamil, whether it was Hera Fairy, whether it was Ant, whether it was there were a lot of South remakes, so I respect regional cinema a hell of a lot, because somewhere down the line they understand mass and they understand emotions just beautifully. I'm here today because Rameshji and Raghav both are very, very close to me. Rameshji is a very close friend, a very wonderful human being, and for me what has always mattered is how good the individual is and my relations with people, and I've made sure that I've always kept that. So I'm here to wish the son Raghav the very best and Rameshji as a producer first. आप और आपकी डॉटर एक एनजीओ में काम कर रहे हैं जो वुमेन के एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, और फिर इस तरह का न्यूज़ मिलना आसिफा के बारे में कितना दर्दनाक, कितना दिल दहलाने वाला है आपको? मैं तो वो तो जान से मार देता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिल घटिया किया हुआ। आई थिंक सारा देश खड़ा हो गया, जो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो बोलने में कभी ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खून खौलता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। मैं और आतिया अगर काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए तो आज से नहीं करते आ रहे, पिछले 27 साल से मैं जुड़ा हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया से, जो बच्चों के लिए काम करते हैं और सिर्फ बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। उन बच्चियों को जो फंसी हुई है गलत जगहों में, उन्हें वहाँ से निकाल कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम करते हैं। तो
जैसे कि मैंने कहा कि खून खौलता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा करप्शन देश है जब नहीं, शर्मनाक बात है। आई थिंक एज इंडियंस हमको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को बार बार नज़रअंदाज करके और पास होने देते हैं। लेकिन आई थिंक इस बार देश एक हुआ है और उन्हें सज़ा मिल रही है। और सज़ा छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, सज़ा ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी को सोचने से पहले डर लगना चाहिए। जब भी हमने देखा कि इस तरह के जब बड़े केस आते हैं, बिजनेसमैन एक्टर के बड़े केस तो सुनवाई और न्यायालय जल्दी ही एक्शन लेता है, फिर इस तरह का केस कोई आता है तो मुजरिम आने के बाद भी रिहा हो जाता है। आई थिंक अच्छी बात कही आपने। तो आई थिंक सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है और हम सबको एक साथ होके खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप लोग खड़े हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे? लंबा चौड़ा ऐसे लंबा चौड़ा है तो आई एम श्योर कि मारदार भी अच्छा ही करेगा। आई विश हिम द वेरी बेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो बतौर एक्टर के नहीं, सुनील शेट्टी बन के नहीं आया, बल्कि रमेश जी का एक दोस्त, राघव का एक वेल विशर बनकर यहाँ आया हूँ। एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। मैं जानता हूँ कि एक आउटसाइड, अगर एक रैंक आउटसाइडर जब इंडस्ट्री में आता है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मैं भी उनमें से था जो एक मौका मिला और मैंने छलांग लगा दी। आई विश हिम द बेस्ट एंड आई विश द एंटायर टीम द वेरी बेस्ट। और जैसे ही मैं हमेशा कहता हूँ, रीजनल सिनेमा में कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। थैंक यू सर। मेरे लिए सर आए, उनके लिए मतलब कुछ शब्द नहीं, तो आए उन्होंने इतना आशीर्वाद दे दिया मुझे, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हल्फा मचा के गए। जो ट्रेलर देखा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट लगा। और राघव ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा डांस किया है, एक्टिंग करी है। और रमेश जी जो है राघव के पिता है, उन्होंने राघव के पीछे, और मैं राघव को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत ही मेहनती लड़का है। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म हल्फा मचा के गई बहुत चलेगी। और इसका जो म्यूज़िक है वो याशी म्यूज़िक में आप देखिए और सुनिए। राखी जी ने बोल दिया हल्फा मचेगा। बिल्कुल बिल्कुल मचेगा। आप तो पैदा हुए हो हल्फा मचाने के लिए। मैं सपोर्टर हूँ जी। She's my supporter. Yes, always. All the make हल्फा। हाँ, to make हल्फा। Yes, yes. Thank you so much. सबसे पहली बात तो ये सब लोग मेरे वेल विशर्स तो बन के आई हैं, लेकिन ये इन सब से सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। ऐसे इतना बोलना चाहूँगा, थैंक यू टू एवरीवन, सुनील सर, रज़ा सर, राखी मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो लोग आए। अब्बास मस्तान सर, जो इतने बड़े डायरेक्टर, उन्होंने मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करा, तो आई होप कि पिक्चर बहुत अच्छी चले। तो क्या किरदार था, तैयारियाँ करनी? स्टार्टिंग में मेरे को भोजपुरी सीखनी पड़ी, मैंने 2 महीने वर्कशॉप करी। और जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत आज के टाइम पे याश लड़के का कैरेक्टर है, और वो लड़की जब शिप्रा आती है वो कैसे मेरे को बदलती है, वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सपोर्टिंग के लिए कई सितारे नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं जैसे बोला कि मैं बहुत खुश भी हूँ और इनका बहुत थैंकफुल भी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। आज तक आई डोंट थिंक सो कि एक नए लड़के को किसी ने इतना सपोर्ट करा होगा, और उन्होंने करा। उनका बस दुआ है उनकी कि मैं आज यहाँ पे उनके साथ खड़ा हूँ। कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे शूटिंग के टाइम की? यादें ताज़ा यादें तो बहुत हैं। हम हल्फा मचा के कल के टाइम पे बहुत है। मेरे को रज़ा सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। रज़ा सर ने अपने बारे में इतना अपनी हिस्ट्री बताई सर, और आज उनकी वजह से मैं ये है कि अपना डे टू डे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। ऑडियंस को भी देखना चाहेंगे भाई, ये पिक्चर रूटीन फिल्मों से अलग है। हल्फा मचा के कल ज़रूर देखिए, 11 मई को रिलीज़ हो रही है, तो जस्ट प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। थैंक यू सर। हल्ला मचा के गई ये फिल्म जो है हल्ला मचाएगी। हम भी इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मैं, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, हम आपको नाचते हुए दिखाई देंगे। और ये लड़का जो है ये कमाल का एक्टर है। फिल्म है जिसने के साथ उसने काम किया है, कमाल का काम किया। और
मेहनत के साथ साथ जो आपकी नीयत होती है, नीयत पे भी चलती हैं, ऊपर वाला भी आपकी नीयत को परखता है। तो बड़ी अच्छी नीयत के साथ की गई है और मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ। सर, बात करें राघव पहली बार एंट्री कर रहे हैं इस सिनेमा के माध्यम से, एक नया जोश है, क्या कहना चाहेंगे राघव के लिए? देखिए, वो अमिताभ बच्चन हों, वो दिलीप कुमार हों, वो सारे दिग्गज एक्टर हों, सबकी शुरुआत तो पहली फिल्म से होती है। पहली फिल्म तो करनी पड़ती है, पहला शॉट देना पड़ता है। ये राघव की पहली फिल्म है, राघव ने पहली फिल्म की है। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लीजिएगा उसका काम, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और जो गाड़ी कमाई से टिकट लेगा उसे भी राघव का काम बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? हल्फा मचा के गई, हल्फा मचा के गई, हल्ला मचा के गई। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देश में जो माहौल है, 8 साल की बच्ची के साथ जो है बलात्कार होता है, उसे हत्या कर दी जाती है उसकी, और इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रहे हैं। आज भी हरियाणा में जो है एक मामला सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा कानून पूरे मुल्क में बनना चाहिए, ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि पूरे मुल्क में। पार्लियामेंट से यह कानून पास होना चाहिए कि बलात्कारी, वो किसी बच्ची के साथ हो, किसी महिला, किसी लड़की के साथ हो, उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। फांसी से कम उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका आप कत्ल करते हैं वो तो मर जाता है, वो चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिसका बलात्कार होता है वो जीते जी मर जाती है। एक कलंक लग जाता है उसके माथे पर, उसके घर वालों पर। किस तकलीफ के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं ये वही जानते हैं। जो तन लागे सो तन जाने, उन्हीं को पता है कि किस तकलीफ से, किस मानसिक यातना से वो गुजरते हैं। तो फांसी से कम सज़ा बलात्कार की नहीं होनी चाहिए। बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस बात पे कि हल्फा मचा गई इस फिल्म का, इस मल्टी स्टारर फिल्म का छोटा सा हिस्सा मैं हूँ। और इस फिल्म को बनाने वाले रमेश नैयर जी और उनके बेटे राघव नैयर, तो पूरे परिवार को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म सुपरहिट हो जाए और हमारे रमेश साहब बहुत ज़्यादा फिल्में बनाएं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे कैरेक्टर में, अच्छी अच्छी फिल्मों में, हिंदी, भोजपुरी और सभी भाषाओं में आपके सामने आते रहे। सर, एक नए जोश के साथ एक नए चेहरे ने पदार्पण किया है, वो भी भोजपुरी सिनेमा में, और जिस तरह से काबिल तारीफ हुई है उनकी ट्रेलर देख के, आप क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी जनता हमेशा वैरायटी एंटरटेनमेंट पसंद करती है। हमारे पुराने जो लेजेंडरी एक्टर्स है, निरहुआ जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, अब नए में पवन सिंह हो गए, लेकिन नए में भी उनके पास में कोई कलाकार नहीं था। तो मेरे ख्याल से राघव जो है वो भी अब उन्हीं श्रेणी में खड़ा हो जाएगा जो इन महान कलाकारों ने अपनी जगह बनाई, क्योंकि राघव बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्म है। आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी सिनेमा को लेकर हल्फा मचा गई, कि आपके नज़रिए से देखा जाए, आपके अंदाज में? दर्शकों, आपकी अब हो गई है खोज पूरी। दर्शकों, आपकी अब हो गई है खोज पूरी, क्योंकि राघव आ रहा है डेब्यू करने इन भोजपुरी। हल्फा मचाई गई ये पिक्चर बहुत सुपर हिट होगी और आपका प्यार पाने वो नज़दीक आएगा, अब नहीं होगी उससे आपकी दूरी। लव यू ऑल। तो आपसे निवेदन करता है रतन नूरा और उनकी पत्नी रतन नूरी, ये फिल्म देखना ज़रूर पूरी। माहौल बना है, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सिलसिला रुकता नहीं है। आज भी हरियाणा में मामला देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? शर्मिंदा हूँ मैं, सीरियसली शर्मिंदा। मुझे लगता है कि जो ऐसा कृत्य करते हैं, कानून उनके लिए होना नहीं चाहिए। कानून इंसानों के लिए होता है, ये शैतानों के भी ऊपर है और इनको कानून के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। इनको वही सज़ा देना चाहिए जो इंस्टेंट सज़ा,
अगर पता चल गया है कि इन्होंने क्राइम किया है तो तुरंत इनको फांसी भी लटका देना चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए, जनता जैसे इनको सजा दे सकती है ताकि इनकी रूह कांप जाए। उनको देखने के बाद अगर कोई शैतानी करने की सोच रहा है, शैतानी और हैवानियत करने की सोच रहा है, तो उसे सबक मिल जाए। मैं नहीं समझता कि इस टाइप के हैवानों को कानून के दायरे में कोई सज़ा है, वो सिर्फ इंसानों के लिए होती है। जो इंसान से कोई गलती हो जाए तो कानून उनका इंसाफ कर सकता है, इनका नहीं, इन हैवानों का नहीं। बात करें हल्का मचा के ट्रेलर लॉन्च हुआ, बड़ा खूबसूरत लगा, और खासकर इस फिल्म के हीरो पे बड़ी तारीफ हुई, और आपके साथ जो गाना है सब लोग बस मैं यही कहना चाहूँगी कि रीजनल सिनेमा आज के दौर में बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, एंड भोजपुरी में ये अच्छी फिल्म आपने देखी जिसका ट्रेलर आज लॉन्च हुआ। सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मेरे को डांस और सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, एंड जब रमेश जी जो हमारे फैमिली फ्रेंड है उन्होंने हमें ये सॉन्ग ऑफर किया जो हिंदी में था, तो मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मैंने एक नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, और कॉर्पोरेट फिल्म के बाद ये मेरा दूसरा आइटम सॉन्ग होगा हिंदी में। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तो क्या कहना चाहिए, राघव नया था और आप जो है गाना उनके साथ किया, क्या कहना चाहिए? राघव इज़ लाइक फैमिली, लाइक आई सेड, एंड वो बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर है, एंड आई रियली होप कि ये फिल्म उनके लिए चले, उनकी फैमिली के लिए चले, क्योंकि रमेश जी संग्राम जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सबने इतनी मेहनत करी है फिल्म के लिए। सो आई रियली होप ये फिल्म राघव और उनकी फैमिली के लिए आप लोगों को सबको पसंद आए। जैसे सुनील सर ने बोला, रमेश जी इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एंड जैसे प्रेम चोपड़ा साहब ने भी बोला, रमेश जी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग, एंड मैं रियली चाहती हूँ कि उन्होंने जितनी मेहनत करी है ये फिल्म के ऊपर, ये फिल्म उनके लिए, उनके सन के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड। आप ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम सब हिंदी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, मगर एक्चुअली फिल्म वो अच्छी हमें पसंद करनी चाहिए जिसकी कहानी अच्छी हो, जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देती है, चाहे वो रीजनल फिल्म ही क्यों ना हो। एंड जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा की अलग मार्केट हो गई है, आई होप हम सब ये अलग अलग रीजनल फिल्मों को पसंद करें और हिंदी फिल्मों की लेवल पे लेके आए। भोजपुरी सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सिनेमा छोटा बड़ा नहीं होता। अमिताभ जी ने भोजपुरी फिल्म की है, जया मैम ने जो भोजपुरी फिल्में की है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टोरी के साथ जुड़ रहे हैं, आप कौन से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। एंड ये जो सेटअप है था हल्का मचा देगा, ये बहुत अच्छे लोगों का प्रोजेक्ट है, एंड इनके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया क्या फुल मूवी आप करना चाहेंगे? आई रियली डोंट नो, बिकॉज एक नया लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, मगर अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, एक अच्छा स्टोरी बोर्ड हो तो क्यों नहीं, क्योंकि आई बिलीव दैट जिस तरह से आजकल एक्ट्रेसेस प्रियंका एवरीबडी रीजनल सिनेमा प्रोड्यूस कर रहे हैं, करण जौहर जी का भी ब्रांड मराठी सिनेमा को सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक अगर हम बॉलीवुड से आके रीजनल सिनेमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन? पायल, उन्नाव में और कटवा में जो भी हुआ है, आपका स्टैंड क्या होगा? मैं हरदम कहती हूँ कि इंडिया इंटरनेशनली फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के रेप केसेस के बारे में सारी दुनिया पूछ रही है और जानना चाहती है। तो इसका रीज़न ये मैं रिलीजन के ऊपर नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग एज मीडिया, एज सेलिब्रिटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के तरफ कि हम रेप को रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं उलझाएं, हम रेप को एक वोट बैंकिंग में नहीं उलझाएं। रेप होता है एक फीमेल के साथ, एंड इट इज़ अ रेप ऑफ अ वुमन। यहाँ पे वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, ये बिल्कुल आपके मायने में नहीं आना चाहिए। और जो लोग, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, ये रेप को, आसिफा और
उन्नाव के रेप को रिलीजन और पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, मेरे को उन पे बहुत शर्म आ रही है। मैं खाली कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे इंडियन मेल की मेंटालिटी बदलनी चाहिए, माइंडसेट बदलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों चाहते हैं कि इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट वे इंडियन फीमेल पे करें, ये हमें समझने की ज़रूरत है। थैंक यू। लुक संडे तारीफ किया, बॉलीवुड के काफ़ी सितारे नजर आए, पहली बार सिनेमा की और आपने एक शानदार फिल्म बनाई जो काफ़ी तारीफ की जा रही है। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रमेश जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उनके बेटा राघव ने जो इस फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट है। इन्हीं लोग के बदौलत ये जितने सारे बॉलीवुड के चेहरे आप लोग देख रहे थे, डायरेक्टर जो अब्बास मस्तान जी हुए, राजा मुराद जी हुए, प्रेम चोपड़ा जी हुए और सुनील शेट्टी जी हुए, सारे इन्हीं के लिए इनके साथ पर्सनल रिलेशन था, जिसके कारण भोजपुरी फिल्म को ब्लेसिंग मिले आए। ये हमारे लिए और इतने सारे अच्छे आदमियों को ब्लेसिंग्स मिला होगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली अपनी हल्का मचा के गए, रियल में हल्का मचाए, ये उम्मीद तो रख सकते हैं। सर, जो साथ आप सिनेमा बना रहे थे और चाहा था एक नए लड़के को लॉन्च करना था, आज वो सफल हुआ, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक नए लड़के को लेकर, मोस्टली भोजपुरी में होती क्या है कि प्रॉपर फिल्में बन नहीं पाती है नए लड़कों को लेकर, ये फिल्म सफल बनी, इसमें सेलिब्रिटी स्टार हो जाएगी, गाने में आइटम सॉन्ग में पायल होते मिली आए और अब देख रहे हैं और ट्रेलर लॉन्च में सारे बड़े बड़े हस्ती आए, तो ये एक तरह से ड्रीम्स कम ट्रू जैसा होता है हम भोजपुरी वाले के लिए, क्योंकि इतने नए स्टार को लेकर इतनी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर पाना इससे बिग थी, और मुझे लगता है कि रमेश नंदन जी ने इसमें सफलता हासिल की है। इसी तरह से भगवान करे, अल्लाह करे कि हमारी फिल्म में भी सफलता मिले और राघव एक एस्टेब्लिश स्टार बने। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी से वादा नहीं करूँगा कि कोई बहुत बेहतरीन और बहुत डिफरेंट और ये कुछ है, एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है और जिसमें जो भोजपुरी तड़का है, गुटगुटी है, सब कुछ है। एक नए लड़के हैं, नए लड़के को सहारिए, नए जब रहता है सबसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी खामियाँ गलतियाँ होती हैं, तो इन गलतियों खामियों को माफ़ करते हुए हमारे लिए, मैं भी 14 फिल्म किया हूँ, मुझे अंदर भी कुछ गलतियाँ कमियाँ होंगी, उसको नज़रअंदाज करते हुए फिल्म को देखें और सहारे और फिल्म को बाकी में कॉमेडी फैमिली मूवी है, इसके बेहतरीन गाने हैं और बॉलीवुड में क्या मेरा बहुत बड़ी एक अच्छी इवेंट करती है और मैं टीचरों से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों को मैंने बोला कि बेटे को लॉन्च करना है, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया एक बढ़िया गाना शूट करो सेलिब्रिटी वाला, और एक मैंने हिंदी में आइटम सॉन्ग अच्छा किया जिससे आपको ये भी लगे कि हिंदी के आते ही भोजपुरी में काम कर सकते हैं अगर अच्छा प्रोजेक्ट बने तो। जैसे कि सिनेमा से बॉलीवुड बन गई थी, लेकिन वो आपने एक सेफ काम किया, एक ऐसा ख्याल है कि बॉलीवुड में नजर आना चाहिए। देखिए, भोजपुरी वालों में कुछ लोग तो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, कुछ लोग ने भोजपुरी में बहुत चीप कर दिया, तो मेरे मन में शुरू में भोजपुरी में जुड़ा हुआ, काफ़ी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने अपने बेटे को लॉन्च करना, मैंने कहा कि मैं पहले भोजपुरी से लॉन्च करूँगा और इसमें हिंदी का टेस्ट लेके आऊँगा कि भोजपुरी में मुझे लगे कि अब अच्छा प्रोजेक्ट हिंदी का आगे आपके साथ। तो आज जो फिल्म बनकर तैयार है तो क्या कहना चाहेंगे? सर, फिल्म तो आपके सामने है, बाकी आप बताएंगे। हमने फिल्म बनाई है, अच्छी फिल्म बनाई है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, विशेष चाहिए, बाकी तो आप बाकी पब्लिक का फिल्म कब रिलीज हो रही है? सर, फिल्म 2 वीक को फिर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपील करूँगा कि आप आइए परिवार के साथ, एक साफ सुथरी बढ़िया कॉमेडी और एंटरटेनिंग म्यूजिकल भोजपुरी मूवी देखिए और बच्चे पास हुए। थैंक यू सबको, मेरा नमस्कार। अभी आपने ट्रेलर देखा, अभी पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा। और हम लोग इतने लक्की है कि हमारे साथ जो पायल जी जॉइंट हुई, पायल जी कभी आज तक किए नहीं भोजपुरी मराठी, अभी ये करना शुरू किए, इनको रिक्वेस्ट किया, रमेश जी बोले अपने घर के सब हो गए, बात करके पायल जी ने गाना किया और वो गाना आप देखो अल्फा मचा देगा पूरा, हुक्का बुक्का 3 तेलू का कमाल गाना, कमाल डांस किया पायल जी ने, इतना मेहनत की इन्होंने
आज तक कोई आर्टिस्ट इतना मेहनत करता नहीं, बोले हाँ ठीक है ना सेट पे कर लेंगे। 2, 4 बार 5 बार रेसल करके एक गाने में 4 चांद लगा दिए। बस इनका बड़प्पन ने बहुत अच्छा काम किया। यही बस पिक्चर हमारी चले, ऑडियंस देखे, बस यही हम चाहते हैं। सर एक गाने में जो है जिसमें कि आपने कोरियोग्राफी किया, उसमें भोजपुरी और बॉलीवुड के संगम देखने को मिला, तो कैसा इमेजिन किया आपने? ये ऐसे ही बस रमेश जी ने बोले अपने सब स्टार है उनको यूज़ करते हैं, बोला अच्छा है। हैप्पी न्यू ईयर में था, फराह खान ने किया था, हम अपने भोजपुरी में एक नया चीज़ करें, तो हम लोगों ने कोशिश की है। अगर सक्सेस हुआ, बस ऑडियंस लाइक करे, बस वो फिर सक्सेस हो जाए। सर इतने बड़े सितारों को एक गाने में एक साथ एक मंच पर लाना बड़ा रिस्क होता है, बड़ा मैनेज करना होता है। मेहनत नहीं, वो सब फैमिली रिलेशन वाले, और उनको मैंने एज ए रजा मुराद को हीरो भी नचाया हूँ, रंजीत जी को नचाया हूँ, प्रेम जी को भी डांस करवाया। इतने सालों के बाद मिले तो एक ऐसा लगता है अपनी फैमिली मिल गई। तो सबसे खुशी मेरे को मिली कि सब लोग मेरे फैमिली के मेंबर्स आ गए थे। एक नया सितारा पदार्पण किया है जिसके जो है अभी कहते हैं पूत पालने में ही नजर आते हैं पाँव। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, राघव जैसा एक नया अपकमिंग स्टार, इतना अच्छा डांसर, कमाल है। मेरी गारंटी है ये पिक्चर 100% चलेगी और राघव एक स्टार बनेगा, ये मेरे आशीर्वाद है। पायल जी खड़ी है, इनके बारे में क्या कहना है? पायल जी के तो साथ मैंने ऑलरेडी कितने गाने किए, अभी ये गाना आप देखोगे तो पायल जी के तो आपको मालूम है। पायल जी को एज ए हीरोइन कब लेके आना है? बहुत जल्दी, अभी बोलो तो कल ही मैं बात करके फाइनल कर देता हूँ। बहुत जल्दी आपको वो न्यूज़ भी मिल जाएगी। वो न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी। हाँ जी पायल जी, आप बताइए कुछ, आपने गाना बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पप्पू जी इज़ अ वेरी सीनियर कोरियोग्राफर, आप सब जानते हैं, एंड इट वाज अ प्लेजर कि मैंने उनके साथ फिर से ये गाना किया। एंड थैंक यू, अगर कुछ भूल चूक हुई है तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल ऑन द सेट। एंड रमेश जी, जैसे मैं कहती आ रही हूँ, इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, संग्राम जी के दोस्त हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये गाना किया, क्योंकि गाना हिंदी में है, भोजपुरी सिनेमा में, तो समथिंग न्यू ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग। एंड आई रियली होप कि ये फिल्म इनके लिए, राघव के लिए जो इनके सन है और इनकी फैमिली के लिए चले, एंड गाना भी आप सबको पसंद आए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ही अगर ये फिल्म को पसंद करेंगे तो हम लोग आगे कुछ और नया करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।